So students, now we will discuss some numerical problem regarding the units of temperature. So it is nothing but it is the conversion of one unit to another unit of the temperature. So these are some important unit which we are using frequently. Like if we are talking about room temperature, so sometimes we are using the word room temperature. So basically the room temperature will be considered as 25 degrees Celsius. So now what is the question? Convert the following temperature into Fahrenheit. हमें ये वाली जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में. एंड सेकंड थिंग इज बॉडी टेम्परेचर. So we should know about one thing, that 37 degree Celsius is our body temperature. डिग्री सेल्सियस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो इन डिग्री सेल्सियस को इसका आंसर बेसिकली हम जानते हैं. वी नो दैट कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस में हम यूजली कंसिडर करते हैं वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं वो हम एक्चुअल जो थर्मामीटर के अंदर देखते हैं दैट इज़ 98.6. तो हमें इसका आंसर पता है, वैसे 98.6 है, बट हमें अब इसे सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? ठीक है. हमें यहाँ पर इससे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट इन द फ़ारेनहाइट. तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है. तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे. दिस वैल्यूज आर इन डिग्री सेल्सियस. तो जहाँ डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है वहाँ ये वैल्यूज रख देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ए सॉल्व कर रहे हैं तो पुट 25 डिग्री ओवर हेयर एट द रूम टेम्परेचर साइड. ठीक है. सो दिस विल बी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 32. तो कितना देगा? 545 प्लस 32. द आंसर विल बी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का. सो याद रखना है. इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. सो यदि रूम टेम्परेचर की बात करें डिग्री सेल्सियस में तो इट विल बी ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस. बट जब रूम टेम्परेचर की बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो वो कितना होगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो इसी बेस पर हम सेकंड चीज जो है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बी पार्ट, वो सॉल्व करेंगे. देखिए सेकंड part, that is the convert the human body temperature which is in the degree Celsius. Now we have to convert it into the degree Fahrenheit. So how we will convert it? Same way. So this will be the degree Fahrenheit is equal to 9/5. Now in place of degree Celsius we put the 37 plus 32. So solve it. This will be around 9 multiplied by it is around 7.2 plus 32, and this will be equal to 66.6 plus 32, and the answer is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. दिस इज इन द डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड जो हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इट विल बी डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. Particular date temperature recorded in New York City is 60 degree Fahrenheit. What would be the equivalent in degree Celsius? So we know the answer. I mean equation. The equation is degree Celsius equal to 5/9 degree Fahrenheit minus 32. Fine. So we will solve it. How we can solve it? So very easy. So degree Celsius equal to 5/9 multiply by degree Fahrenheit is 60 minus 32. Okay. So it will become out 28. So 5/9 multiplied by 28. When we solve it, the answer will be 15.55. 15.55 exactly equal to 15.56 degree
Celsius in the round figure. So that will be the answer. Fine. Next problem is, at what temperature will both the Celsius and the Fahrenheit scales read the same value? Important है, important question है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान से करिएगा. So let's consider that value will be x. हम वो मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है, x है. And we know about the degree Celsius. What is the formula for the degree Celsius with Fahrenheit? Degree Celsius equal to 5/9 degree Fahrenheit minus 32. Fine. So ये हमारा फॉर्मूला है. तो we will put both the value will x, दोनों की दोनों वैल्यूज का पुट कर दो, x पुट करो तो x is equal to 5/9 multiplied by x minus 32. So यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व विल बी 9x, 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 5x माइनस में 60, that will be 60. फाइन. सो सॉल्व किया, इसको क्या आ गया, 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160. So that will be 4x equal to minus 160 and x will be divided by 4. It will be minus 40. So minus 40 जो होगी, ये कैसी वैल्यू होगी, जो दोनों में सेम वैल्यूज कंसीडर की जाएगी. यानी कि minus 40 जब टेम्परेचर होगा तो वो इधर भी फ़ारेनहाइट में भी सेम होगा और सेल्सियस में भी सेम शो करेगा. minus 40 डिग्री सेल्सियस will be equal to minus 40 degree Fahrenheit. So as we are continuing the definition portion, so the next definitions are atoms and molecule. So first of all, let us discuss about the definition of an atom. An atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का ये smallest particle होता है. इसमें मतलब इसकी जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है वो ये क्या होती है, इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि या ये सिंगली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. जैसे कि वी हैव टू एग्जांपल ऑफ इट. इसके दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं. एटम ऑफ कॉपर एंड आयरन. वी नो दैट द एटम ऑफ कॉपर एंड आयरन कैन एग्जिस्ट सिंगली, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? वी नो दैट हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. हाइड्रोजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा और आपको किस फॉर्म में हमेशा दिखाई देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस. सेम वे में ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होके ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये आपको दिखाई देगा. यानी कि ये हम इसको हम स्टडी कर सकते हैं. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि इमीडिएटली किसी ना किसी से रिएक्ट कर जाते हैं. सो दैट्स व्हाई these are the two different portion, यानी कि we can say the example on the basis of their existence. These particular examples are they can exist freely, ये exist कर सकते हैं, and these are the examples which cannot exist freely. So best one is this of molecule. Molecule is the smallest part of an element. किसी भी एलिमेंट का smallest part होता है which can exist freely, जो freely exist कर सकता है. जैसे कि एटॉमिक पार्ट के अंदर ये पार्ट थी कि वहां पर एक पोर्शन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था और एक पोर्शन फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता था. बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है. इट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. सो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. बेसिकली मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क होता है, कॉम्बिनेशन से बनता है. जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एटम है और एटम है, ठीक है. जब ये कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन एक्चुअली. तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल. दिस इज द मॉलिक्यूल. ये क्या है, एटम है. ये भी क्या है, एटम है. सो ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. तो हम इसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. सो दिस ऑलवेज एग्जिस्ट. ये हमेशा ही ये क्या होगा, एग्जिस्ट होगा. सो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन.
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। दूसरी बात, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं। सेम वे में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, यस एग्जैक्टली इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस। सो इसके बेसिस पर हम इसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मतलब है सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि सिमिलर एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम है। जब सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द होमोटॉमिक। दिस इज आल्सो कॉल्ड होमोटॉमिक। होमो मींस सेम, एटॉमिक यानी कि सेम एटॉमिक से, यानी कि सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। फाइन। सो अदर वे में जो दूसरी बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कॉम्बिनेशन तो हो रही है यहां भी, बट जो एटम्स हैं वो सेम नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि दीज आर द दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जो किससे मिलकर बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, HCl गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूल की, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एटम बोलेंगे। फाइन। फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज समहाउ न्यू टॉपिक, बट ये ऐसा टॉपिक है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि ऑल सच क्वांटिटीज व्हिच कम अक्रॉस आवर साइंटिफिक स्टडीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी कोई हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उस दौरान जितनी भी क्वांटिटीज हम यूज करते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ 4.5 किलोग्राम। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते ही हम यदि सब्जी खरीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज खरीदते हैं तो हम उसको किस प्रकार मेजर करेंगे कि 4.5 किलोग्राम। जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमेशा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, अ नंबर एंड द सेकंड वन इज अ यूनिट। उसमें एक नंबर होगा और दूसरी क्या होगी, एक यूनिट होगी। जैसे कि हमने यहां पर बात की 4.5 किलोग्राम। इन 4.5 किलोग्राम में यदि मैं नंबर की बात करूं तो 4.5 इज द नंबर एंड द यूनिट इज किलोग्राम। यहां पर जो यूनिट नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, किलोग्राम। इस यूनिट के साथ ही हमें यह चीज पता लग जाती है कि जो भी कोई चीज हमने परचेज की है या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो किलोग्राम में ली गई है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मास था, सॉलिड था। तो इस वजह से हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि यस, हम जो भी कोई चीज की बात कर रहे हैं साइंटिफिकली या हमारे जनरल वे के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की उसकी फिजिकल स्टेट क्या है और वो कितनी अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी हमारी आगे फर्दर स्टडीज है वो रहेगी। इसके अंदर हमने पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी को 7 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 7 पार्ट क्या है, आइए देखिए। बेस फिजिकल क्वांटिटी, these are the basic physical quantity. टोटल ये 7 इन नंबर्स हैं, these are 7 इन नंबर्स। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं, फिर इसको याद करने की टिप भी करेंगे कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और सब ऐसी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पहले कभी सुनी हुई है। सो पहली कौन सी है, मास। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था जिसके अंदर 4.5 किलोग्राम की बात की, तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मास। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर करंट, जो भी सर्किट वगैरह की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब क्या है, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि चेंजिंग टेम्परेचर की बात हो रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जब टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम उस चीज की बात करते हैं, जैसे सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं और काफी समय तक यदि वो चाय कप में पड़ी रहे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सो इट मींस टेम्परेचर जो है वहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चाय के गर्म कप से मूवमेंट होता है कहां पर, एनवायरनमेंट में।
सो थर्मोडायनेमिक यानी कि हीट का डायनेमिक यानी कि मूवमेंट हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर। देन टाइम, जो टाइम तो शायद हम काफी लंबे समय से टाइम के बारे में बात करते रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर टाइम जो है सेकंड में कंसीडर किया जाता है, बहुत से न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं जो टाइम के ऊपर बेस्ड हैं। देन लेंथ, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, हमने 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर किया था दैट इज कॉल्ड मोल, तो उसके अंदर मोल्स के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। एंड एट लास्ट वी आर हैविंग लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस वर्ड जो है वो बेसिकली लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लाइट के लिए हम लुमिनस का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिटी मींस लुमिनस पावर, यानी कि इंटेंसिटी कितनी है, लाइट कितनी अवेलेबल है। तो ये 7 बेसिस हैं, 7 बेसिस फिजिकल क्वांटिटी हैं। सेकेंड पॉइंट पर जो हम इसका यूज करते हैं, तो हम क्या क्या सिंबल हैं, हम हर चीज को सिंबलाइज करते हैं। तो मास को हम m से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, टेम्परेचर को T से, देन टाइम को स्मॉल t से, लेंथ को L से, नंबर ऑफ मोल्स को n से, और IB इज द लुमिनस इंटेंसिटी। और ये उसके SI यूनिट मास, एम्पियर, केल्विन, टेम्परेचर, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर के अंदर। देन टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। हम यूजुअली कॉमन यूनिट जो यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस करते हैं, बट एक्चुअली जो SI यूनिट है वो उसकी क्या होती है, केल्विन होती है। टाइम की सेकंड, देन लेंथ की मीटर, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात हुई थी तो मोल, देन कैंडेला, दिस इज द लुमिनस इंटेंसिटी। आफ्टरवर्ड्स ये सारे सिंबलाइज्ड हैं, इन SI यूनिट को भी हम सिंबलाइज करते हैं, मास को किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, सेकंड, देन मीटर, देन मोल एंड CD कैंडेला से। सो ये सारा का सारा जो हमारा टेबल है, दिस डिनोट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर 7 के साथ फिजिकल क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं, और यहीं पर बेस्ड रहेगा हमारा आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं। तो अभी बात करते हैं कि हम इसको रिमेंबर यानी कि याद कैसे रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम इसको याद करने के लिए एक वर्ड है उसको याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड द मीक लाल, MEETTLAL, मीक लाल, ठीक है। सो M डिनोट्स भी, यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया था, मास E से, इलेक्ट्रिक करंट T से, टेम्परेचर देन T से, टाइम देन L से, we discuss about the length A से, we discuss about the amount of substance and L से लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये वर्ड याद रखना है, मीक लाल। मीक लाल की हेल्प से आप बहुत इजीली जो फिजिकल क्वांटिटी है आप उसको याद रख सकते हैं। तो समय समय पर ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी, ध्यान रखना है कि हम चीजों को याद कैसे करेंगे, ठीक है। सो नाउ देयर आर सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस। ये ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इन आवर यूनिट्स में भी। नॉर्मल डिस्टेंस के या किसी भी तरीके की यदि मेजरमेंट करनी है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, बट कुछ नहीं हैं, तो जो आपको समझनी है कि जो ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। सो जैसे कि मैं वो चीज़ों से चलता हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जैसे वी नो अबाउट द किलो, you know what kilo is? Kilo means we are talking about 10 raised to power 3। तो किलो का मतलब होता है 10 raised to power 3। किलो doesn't means anything। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि किलोग्राम हम यूज करते हैं, तो what does किलोग्राम means? किलो means 10 raised to power 3। 10 raised to power 3 means 1000, so that is equal to 1000 ग्राम। फाइन। तो सेम वे में यदि किलोमीटर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, that is 1000 मीटर। सो ध्यान रखना है, किलो अपने आप में एक वैल्यू है, प्रीफिक्स है, जो किसी भी वैल्यू के आगे रखा जाएगा तो इट मींस 1000 है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखिएगा। किलो मींस डजंट मींस कि इसका मतलब हमेशा ग्राम में ही होगा, ठीक है। जहां भी यूज होगा उससे पहले हम 1000 का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ एक और यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मेगा। किलो के बाद जो आती है वो आती है मेगा दैट इज 10 पावर 6, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी 6 zeros लगेंगी, ठीक है। जैसे मेगा वाट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने यूनिट की बात की हो तो व्हाट इज मेगा वाट याद कीजिए। किलो वाट भी यूज किया जाता था, तो किलो वाट मीन्स दिस इज 1000 वाट एंड दिस इज मेगा वाट मीन्स 10 पावर 6 वाट। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस हैं, अच्छे हैं, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो करेंगे गीगाबाइट, गीगा
जो थर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गीगा, 10⁻⁹ ये 3 के रेशो में बढ़ रहा है तो 10⁻⁹ यानी कि एक के आगे 9 जीरोस लगी होंगी तो 10⁻⁹ तो गीगा है। गीगाबाइट यूज़ की जाती है यूजली, आपने ये वर्ड सुना होगा कंप्यूटर के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो कितनी बाइट्स, यानी कि 10⁻⁹ बाइट्स, ठीक है। सो ये गीगाबाइट्स हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी हैं बट कॉमनली जो हमें ध्यान में रखनी, ये तीनों तो ध्यान रखनी ही रखनी है। अब कुछ एक चीज़ें हैं, ये सब की सभी पॉजिटिव में चल रही हैं, तो कुछ एक ऐसी हैं जो हम मीन्स नेगेटिव वाली टर्म्स को भी ध्यान में रखते हैं। इससे पहले अगर हम 1 की बात करें कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड द डेका। डेका इज 10⁻⁴, ठीक है। डेका ये जब हमने कार्बन्स कंपाउंड 10th क्लास में किया था तो लास्ट में डेकेन जो वर्ड यूज किया था तो वहां से डेका, डेका मीन्स अपने आप में क्या होता है 10 या 10⁻⁴ वन एंड द सेम थिंग। तो ये 4 यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, डेका, गीगा, मेगा, किलो। सो डेका, किलो, मेगा एंड गीगा, तो इन चारों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नेगेटिव वाली करते हैं। सम नेगेटिव पावर प्रीफिक्सेस, जिन ऐसे प्रीफिक्सेस जिनके ऊपर नेगेटिव पावर आती है, तो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो द वन इज डेसी। डेसी मीन्स 10⁻⁻⁴। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो मीटर के साथ यूज़ करते हैं। सो दैट विल बी से DM, D इज डिनोटेड बाय दिस डेसी। So m is meter, so 10⁻⁻⁴ meter, or maybe we can say that 10⁻�0.1 meter. Fine. So that will be deci. Second one is centi. You know centimeter we are using. What does it mean? Centi is denoted by C actually. So जो इसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं D से डिनोट होता है, centi is denoted by C, so it is denoted by C and cm लिखा जाता है यहाँ पे, सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो कॉमन यूज करते ही रहते हैं हम, ठीक है। सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, इसका अर्थ हो गया 0.01, ठीक है, मीटर। जो थर्ड है इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? मिलीमीटर। मिली इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल m, सो इसको भी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो इट इज 10⁻⁻³ स्मॉल m। तो mm, जब हम mm की बात करते हैं, ठीक है, mm, सो 10⁻⁻³ मीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.001 मीटर। डन, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन यूजेबल हैं प्रीफिक्सेस जो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने अब एटम की बात करनी है, एटम की रेडियस की बात करनी है, तो वहाँ पर हमें इससे भी छोटे यूनिट्स चाहिए। सो उन यूनिट्स के लिए डिस्कस करते हैं इससे भी स्मॉल यूनिट्स, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। सो दीज आर जो इसके बाद आती है दैट इज कॉल्ड द माइक्रो। 4th नंबर पर जो आएगी वो कौन सी आएगी? माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। वहाँ मेगा था, मेगा इज 10⁻⁶, तो दिस इज माइक्रो। माइक्रो मीन्स इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। सो यदि मुझे माइक्रोमीटर की बात करनी है तो कैसे लिखेंगे इसको? माइक्रोमीटर। सो दैट विल बी 10⁻⁻⁶ मीटर। इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो 5th पॉइंट पर बात करेंगे दैट विल बी नैनो। जो आगे आएगी वो कौन सी आएगी? नैनो। नैनो मीन्स 10⁻⁹, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सो nm लिखा जाएगा। nm बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एटम की जो रेडियस है वो यूजली नैनोमीटर के अंदर फाइंड आउट करेंगे। सो दैट विल बी 10⁻⁹ मीटर। बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ठीक है, 10⁻⁹। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं वो हम बात करेंगे पिको में, दैट इज कॉल्ड द पिको, ठीक है, डिनोटेड बाय P
it is 10 power minus 12 and denoted by P. So PM means picometer 10 power minus 12 मीटर. ठीक है. और जो लास्ट में है एक और है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, हालांकि उसका यूसेज कम है बट आपको पता होना चाहिए. एक बाद वाली यूनिट है, मोस्टली बात पीको नैनो पर होगी, कहीं कहीं माइक्रो पर भी होगी. और जो इसके बाद वाली यूनिट है दैट विल बी फेम्टो. दैट इज 10 पावर माइनस 15. ध्यान से देखिए कि 3 के रेशियो में ही बढ़ रही है यहाँ पे. सो दैट विल बी फेम्टो. एफ से डिनोट होती है, एफ एम मीन्स 10 पावर माइनस 15 मीटर. सो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं ये चारों की चारों, आपको ध्यान रखनी है. माइक्रो, नैनो, पीको एंड फेम्टो. माइक्रो मीन्स 10 पावर माइनस 6, नैनो मीन्स 10 पावर माइनस 9. इंपॉर्टेंट है ये दोनों यूनिट्स, तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाली है. और कहीं कहीं आपको माइक्रो को इनमें कन्वर्ट करने का बोला जाएगा या नैनो को माइक्रो में कन्वर्ट करने का बोला जाएगा, तो इस वजह से इनके बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक है, ये सारी की सारी. तो माइक्रो मीन्स 10 पावर minus 6, nano means 10 power minus 9, pico means 10 power minus 12 and femto means 10 power minus 15. ठीक है. Already written as a revision criteria, so do it by your own. अपने माइंड में इसको सोचना है कि क्या डेका मीन्स सोचिएगा और देखिएगा कि करेक्ट है. यस, 10 पावर 1. किलो मीन्स यस इट इज 10 पावर 3. Mega means yes it is 10 power 6. and what about giga? 3 की रेशियो से बढ़ रहे हैं तो इतना तो सोच ही सकते हैं, that will be 10 power 9. so DKMG. ठीक है. then here we are talking about deci means 10 power minus 1, centi 10 power minus 2, milli 10 power minus 3, micro 10 power minus 6 and denoted by like this micro. ठीक है. nano 10 power minus 9. जो नैनो गाड़ी आई थी वो इसी वजह से इसका नाम रखा था छोटी है. ठीक है, तो नैनो इज ऑल्सो वेरी स्मॉल यूनिट, सो दैट्स वाई अगर नैनो से भी कोई छोटी आप बनाएंगे कल को तो आप उसका नाम पीको या फेम्टो भी रख सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि उससे भी छोटी यूनिट है. पीको मीन्स 10 पावर माइनस 12 एंड फेम्टो मीन्स 10 पावर माइनस 15. तो ये सारी की सारी यूनिट है, ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से. ठीक है. DKMG, डेका, किलो, मेगा एंड गीगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको एंड फेम्टो. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा.